If you are an English language learner, then you must have heard about subject verb agreement. Yes, friends, subject verb agreement is a really very important concept to learn. And just because of this concept, uh, teaches so many rules, okay, to get that proficiency, to get that accuracy in this language. So we should learn, or we should definitely go through this concept. So in this video, I'm just going to tell you about 2 rules of subject verb agreement, and I will also continue this series. Okay, so without any further ado, let's get deep dive into the video. So hi everyone, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. This is Yashoda, and I hope all of you are doing great and you must be doing amazing. एंड यू नो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हो एंड अगर उसमें आप वो एक्यूरेसी लाना चाहते हो, ओके, फ्लुएंसी वी कैन वर्क जस्ट बाय डूइंग स्पीकिंग प्रैक्टिस, बट आप उसके साथ में अलॉन्ग विद दैट इफ यू वांट टू गेट एक्यूरेसी, इफ यू डोंट वांट टू make any mistake, then you should learn and you should get some knowledge from this concept, and which is subject verb agreement. So first of all, you must be wondering about what is subject verb agreement. Subject verb agreement just like agreement होता है किसी भी चीज का, in the same way किसी भी सब्जेक्ट का एक वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है. जस्ट लाइक इफ यू यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन आपको उसके अकॉर्डिंग, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. On the other hand, if you use plural subject, then according to the subject, according to that agreement, you are supposed to use plural verb, and this is called subject verb agreement. So if you also want to know something related to this agreement, then please try to watch this video till the very end, because I will tell you so many things in this video. And if you will keep practicing using that agreement and using that knowledge, then you must not be making lots of mistakes while speaking, and you will definitely get accuracy along with fluency. So first rule is, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एज आई अर्लियर सेड, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. जस्ट लाइक आई ईट फूड. सो आई वी कंसीडर आई, ओके, आई के साथ हम मोस्टली हम B1 यूज करते हैं विदाउट एस और ई एस, विदाउट पुटिंग एस और ई एस. सो वी आई ईट फूड, या फिर आई गो टू मार्केट. ऑन द अदर हैंड, इफ आई यूज सिंगुलर पर्सन, जस्ट लाइक श्याम, राम, he, she, okay, so we have to use along with s, okay, verb along with s or es. Just like, let's have some example. Ram wakes up early in the morning. I wake up early in the morning, you wake up early in the morning, they wake up early in the morning. When it comes to singular subject, he wakes up early in the morning, he eats food, he sings song, okay, he plays cricket, he watches movie, he listens music. In this way, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर आपकी वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. उसके बाद में सेकंड वन, अगर आपके सब्जेक्ट, ओके, एंड के साथ जुड़े हैं, देन यू हैव टू यूज आर. How? Let me give you some examples. Ram and Sham. Ram and Sham. Now these are two because they are connected with conjunction and. वो and से जुड़े हैं, so that's why they. Now you have to consider both of them plural. आपका subject plural, then you have to use verb plural. Just like Ram and Sham are going to the market. Rima and Seema are cooking. My brother and my sister are watching movie. In this way, अगर वो and से जुड़े हैं तो, okay. Just let me give you 1 or 2 more examples. Just like my friend
एंड आई, या फिर माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर हैजंट, नो, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर हैवेंट कुक्ड फूड येट. ओके, माई ब्रदर एंड माई मॉम हैवेंट हैड पिज़्ज़ा येट. उन्होंने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं खाया है. इन दिस वे. उसके बाद में नेक्स्ट रूल है हमारा, हम जैसे यूज़ करते हैं मेरे दोस्तों में से एक, या फिर मेरी बहनों में से एक, या फिर मेरे भाइयों में से एक, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, ओके, इट सीम्स टू अस दैट इट इज़ प्लूरल, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, one of my sisters. So just because of we always give our preference to only students, brothers, sisters, so that's why we use are, but it's totally wrong. You are not supposed to use are because you are talking about one of your friends, कि आपके दोस्तों में से एक दोस्त, आपकी बहनों में से एक बहन, ओके, आपकी फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर, आपके दोस्तों में से एक दोस्त, आपके भाइयों में से एक भाई. ओके, सो हाउ वी कैन यूज, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल. लेट्स हैव अ लुक. वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर. कि मेरे भाइयों में से एक भाई डॉक्टर है. वन ऑफ माई सिस्टर्स इज क्राइंग. कि मेरी बहनों में से एक बहन रो रही है. One of my friends speaks English fluently, या फिर speaks fluent English. कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त fluent English बोलता है. One of my uncles, कि मेरे चाचाओं में से एक चाचा is drinking alcohol. मेरे चाचाओं में से एक चाचा ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं. In this way, one of my friends, one of my sisters use only is rather than using are. If you will use are, then it would be incorrect. Okay, next one. Now we have to think about neither or and either or. मतलब या तो ये या तो वो, और ना तो ये ना तो वो. Then let me explain this to you. Let me explain this concept. Let me explain this subject verb agreement before you. Neither or, neither nor और either or, इसका मतलब क्या है, हमें को पता है कि दो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, या तो ये या तो वो. एक चीज़ काम करेगी, या तो ये करेगी या तो वो करेगी, या तो फिर नीदर नॉर, या तो ये नहीं करेगी और ये भी नहीं करेगी. इन दिस कॉन्सेप्ट, तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारा जो लास्ट वाला पर्सन है, जो हमारा लास्ट वाला पर्सन है, जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उससे पहले जो हमारा पर्सन है, मीन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको हमें देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स. जस्ट लाइक नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई सिस्टर. नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई सिस्टर, ओके, इज गोइंग टू पिकनिक. कि ना तो मेरे दोस्त और ना ही मेरी बहन पिकनिक पर जा रहे हैं. समझ आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नीदर माई मॉम नॉर माई ब्रदर्स, नीदर माई मॉम नॉर माई ब्रदर्स आर वॉचिंग मूवी. ना तो मेरी माँ ना तो मेरे भाई, बहुत से भाई हैं, ओके, मोर देन वन, तो ना तो मेरी माँ ना तो मेरे भाई मूवी देख रहे हैं. सो वी यूज्ड वर्ब आर, क्योंकि हमारा आर से पहले जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, ब्रदर्स, और इससे पहले वाले में जो हमारी सिस्टर थी वो सिंगुलर थी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फर्स्ट वी यूज इज बिकॉज लास्ट सब्जेक्ट वॉज द क्लोजर सब्जेक्ट. ओके, द क्लोजर सब्जेक्ट वॉज sister, and in the second sentence the closest subject was brothers. तो ये हैं रूल्स कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम योर मिस्टेक्स, एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.